Chalo. Good evening, beta. So we are discussing the NEET 2022 mock test paper, beta, complete physics from the first chapter to last chapter. So the chapters which you are trying to do is from your, I told you already, units and dimensions, and gravitation, SHM, waves, modern physics, heat and thermodynamics, sound, and this all scoring topic, elasticity, surface tension, and to some extent of viscosity, complete kinetic theory of gases, thermodynamics, is all. Chalo. I have not completed semiconductor and devices. So once we complete the semiconductor and devices in the teaching, then we'll try to do even the problems from your semiconductors and devices. Okay, na? Chalo. So the first question, beta. The mean free path for a gas with molecular diameter D and number density N can be expressed as. I hope everyone knows this formula. Can anyone give me the answer for this one, beta? Anyone? In the chat box, you can give me the answer. Which option is answer, beta? Anyone? Mean free path for the gas with molecular diameter D and number density N can be expressed as. Mean free path of a gas is given by the formula, beta. Lambda is equals to your 1 by root of your N pi into your D square. 1 by root of your 2 pi into N into D square. That means option 4 will be the answer for this. Chalo, fourth option. Very good. Next one. This is the elasticity chapter, beta. Question number 1, question number 3. Question number 3. A wire of length L, area of cross section A, and mass M is hanging from the fixed support. Chalo, this is your fixed support, beta. तो यहाँ से एक लेंथ रेंज हो रहा है बेसिकली. दिस इज योर एल जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड इसका मास है एम इज हैंगिंग फ्रॉम द फिक्स सपोर्ट. डिटरमाइन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द वायर ड्यू टू इट्स वेट, यानी इट्स ओन वेट की वजह से कितना होगा. So when it is been hanging, beta, its own weight is right now hanging in the downward direction. तो उसके वजह से थोड़ा extension आएगा इसके अंदर, that will be equal to your x, isn't it? So वो extension कैसे निकालेंगे अपन? Young's modulus का फॉर्मूला मालूम है हम लोग को, y is equals to stress by strain. Stress मतलब force by area, strain मतलब change in length divided by original. Change in length मैंने क्या लिया है यहाँ पर x into original length कितना रखा है मेरे पास L, यानी this will be equal to your L. So this will become for me y is equals to your f into your L divided by your a into your x. X is your extension, beta. So x will be equal to your f into your L divided by your a into your y. This force will be equal to how much, beta? Weight of the body which is acting on the downward direction. So in terms of mass, it is mg into your L divided by a into your y. And from the center of mass ले रहे हैं ना बेटा, इसलिए हम लोग लेंथ को कहाँ से लेंगे? सेंटर ऑफ मास से लेंगे. That will be equal to your 2. Hanging part के लिए like chain or rod anything, हम लोग length always will try to take it from the center of mass. That is the reason this will become for me L by 2. बच्चे ये point छोड़ देते हैं, mg into L divided by ay लिख के आते हैं. So the best answer for this one which I can write is mg into L divided by 2a into your y. वो गलती मत करिए. Whenever it is hanging, we always take the mass from the center of this body. ठीक है ना? Third question, second option. Very good. चलिए. ये टोरॉइड का है. क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए बेटा. क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हैं, कोई देख लीजिए जल्दी से. ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 5 अपन कर सकते हैं. दिस इज फ्रॉम योर ग्रेविटेशन, दिस इज फ्रॉम योर इलास्टिसिटी एंड दिस इज फ्रॉम योर काइनेटिक थियरी ऑफ योर गैसेस. क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए बेटा. ए बॉडी वेट्स 100 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. चलो, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ए बॉडी का वेट है यहाँ पर, इस पे जो फोर्स लग रहा है ये कितना है? इज इक्वल्स टू योर 100 न्यूटन. What is the weight of the body at a height equal to the radius of the earth? तो अब ये बॉडी को ना अपन यहाँ पर कहीं पर लेके गए from the surface of the earth to a height of your this h is equals to your radius of the earth. ये हो गया radius of the earth right now, मान के चलो r. तो फॉर्मूला आपको मालूम है, when you're taking the body to a certain height, the weight of this body will be equal to how much? So w dash will be equal to your m into g at a certain height. Now see here, यहाँ पर जो गलती अपन करते हैं फिर g at a certain height का फॉर्मूला डायरेक्टली हम लोग gh is equals to g into 1 minus of 2h divided by r डाल देते हैं. लेकिन ये कब डालेंगे बेटा? अगर हाइट वेरी वेरी स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ अर्थ हो. ठीक है ना? यहाँ पर जो हाइट अपन जा रहे हैं ना, बिकॉज दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द रेडियस ऑफ योर अर्थ, सो वी कांट यूज दिस फॉर्मूला. सो g at a certain height का जो फॉर्मूला हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा? सो व्हेन यू आर टेकिंग दिस बॉडी राइट नाउ एट अ सर्टेन हाइट,
यहाँ पर लेके जा रहे हो बेसिकली, सो F is equals to G will be equal to your capital G capital M divided by your R plus of your H into your whole square. ठीक है ना? So mass will be equal to how much? Weight will be equal to your W is dash is equals to your M into G at a certain height. At a certain height means this is at your radius of your earth के बराबर है. So it is your capital G capital M small m divided by your capital R plus of your H into your whole square. So small g when it is on the surface of the earth कितना होता है बेटा? Small g is equals to capital G capital M divided by R square. So G into your M will be equal to your G into your R square. तो इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, दिस वैल्यू को मैं पूरा लिख सकता हूँ, G into your capital R square into your M divided by your R plus of your H into your whole square. ठीक है ना? तो ये R square को आप नीचे ले लीजिएगा. So this will become for me how much बेटा? M into your G, that is weight on the earth पे जब था यहाँ पर, इसका weight हो जाएगा यहाँ पर mg डिवाइडेड बाई ये हो गया मेरे पास R plus H होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर नीचे आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा मेरे पास mg into H डिवाइडेड बाई R स्क्वायर into R स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 1 plus H by R का होल स्क्वायर. ठीक है ना? सो दैट विल बी इक्वल टू योर m into your g डिवाइडेड बाय 1 प्लस h की वैल्यू कितनी है? रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है बेसिकली, तो h की वैल्यू क्या लिखोगे आप? रेडियस ऑफ द अर्थ लिखोगे आप यहाँ पर r डिवाइडेड बाय r into your होल स्क्वायर. r कैंसिल हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू mg into 1 plus 1, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू योर mg डिवाइडेड बाय योर 4. यानी वेट जो बनेगा मेरे पास W dash will be equal to your m into g divided by 4. m into g is nothing but what बेटा? weight on the surface of the earth, वो दे रखा है 100 divided by your 4. so ये कितना बन जाएगा बेटा? 25 न्यूटन. so this will be the answer for this one. clear है? चलिए, very good. The next one देख लीजिए बेटा. 6th क्वेश्चन है एंगुलर मोमेंटम का, ये भी अपन डायरेक्ट कर सकते हैं. द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी हैविंग द लीनियर मोमेंटम p बार इज इक्वल्स टू इट्स सो एंड सो पोजीशन. सो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है बेटा? याद है किसी को? एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ योर वेक्टर लिख रहे हैं तो l बार इज इक्वल्स टू r बार क्रॉस ऑफ योर p बार लिखते हैं, isn't it? इन क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम लोग लिख रहे हैं बेसिकली, जिसको हम लोग ऐसे डाल देते हैं बेसिकली, यहाँ पर हो गया i, यहाँ पर हो गया j और यहाँ पर हो गया k. तो r की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे पास राइट नाउ? पोजीशन वेक्टर है 1, 0, 2 से हम लोग जा रहे हैं 2, 3, 1, यानी पोजीशन वेक्टर जो हो जाएगा इसमें से सबट्रैक्ट करना 1 माइनस ऑफ 2, दैट विल बी इक्वल टू योर -1, और यहाँ पर हो जाएगा 3 से यहाँ पर जा रहे हैं तो दिस विल बी इक्वल टू -3, यहाँ पर हो जाएगा -2. r इज अ पोजीशन वेक्टर ना बेटा, सो r विल बी इक्वल टू योर r2 बार माइनस r1 बार कर लीजिए. ये पूरी वैल्यू r2 के बराबर हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू r1 के बराबर हो जाएगी. r2 माइनस r1 कर लीजिए, विल बी गेटिंग -1, -3, -2 एंड मोमेंटम इज गिवन एज 2, 3, 4. तो ये हो जाएगा मेरे पास 2, 3 एंड 4. तो अब आई चाहिए तो हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके हिसाब से आप लोग आंसर देख लीजिए. व्हाटएवर विल बी गेटिंग दैट विल बी द आंसर फॉर दैट. ठीक है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 तो रोटेशनल मैकेनिक्स का है. क्वेश्चन नंबर 8 अपन कर सकते हैं. ये इसका कर सकते हो क्या? देख लो जल्दी से, मैं कैलकुलेशन कर दूं क्या? अगर मुझे आई चाहिए तो इसको आई क्लोज कर लो. 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, तो कितना हो जाएगा बेटा? 12 माइनस 6, यानी ये हो जाएगा मेरे पास माइनस ऑफ योर 6 इंटू योर आई कैप. जे में देख लीजिए बेटा, ये 4 है, 4 इंटू -4, ये -4 यानी 0 हो जाएगा. तो दैट विल बी इक्वल टू योर प्लस ऑफ योर 0 जे कैप. तो जे कैप तो नहीं होगा, जे कैप नहीं होगा मतलब फर्स्ट वन और फोर्थ वन तो नहीं होगा. ऑप्शन आंसर मस्ट बी इधर 2 और इधर इन द 3. तो ये माइनस आया तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट वाला तो मुझे करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्योंकि के की वैल्यू यहाँ पर, आई की वैल्यू यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है. एक ही ऑप्शन अपने को दिखाई दे रहा है तो टाइम अपने को सेव हो गया, तो थर्ड ऑप्शन अपन लिख के आ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए बेटा. द यूनिट ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विल बी इक्वल टू हाउ मच? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? F इज इक्वल टू कैपिटल G m into m स्क्वायर डिवाइडेड बाय योर r स्क्वायर. तो ये हो जाएगा g की वैल्यू बाहर निकाल लीजिए, इट इज F into your r स्क्वायर डिवाइडेड बाय योर m स्क्वायर, isn't it? Force is measured in your Newton, distance is measured in your meter square, so it is Newton meter square divided by your kg square. न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया, पर केजी स्क्वायर आना चाहिए, यानी 8 वन का आंसर हो जाएगा मेरे पास 4. ठीक है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 इज अगेन योर रोटेशनल मैकेनिक्स क्वेश्चन. वी आर नॉट टचिंग दैट वन. क्वेश्चन नंबर 10 इज राइट नाउ फॉर मी वर्क और एनर्जी. देन क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए. दिस इज फ्रॉम मॉडर्न फिजिक्स बेटा. दिस इज योर एटम्स. एटम्स के क्वेश्चंस कंपलसरी करना चाहिए. द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट.
इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर रिस्पेक्टिवली। मैंने चीख के बहुत बार लिखवाया भी था, इसका कंपलसरी कंडीशंस याद रखना बोल के डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। देख लीजिए अपने को, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू योर मॉड ऑफ योर टोटल एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू योर माइनस ऑफ योर पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। तो क्या आंसर आ जाएगा, देख लीजिए अपने पास, द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन फॉर मी एज -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू हाउ मच। अगर ये काइनेटिक टोटल एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बन जाएगी, प्लस बन जाएगी। तो प्लस के अंदर अपने पास कौन से बेटा 1 2 3 में सब में भी है, तो एक नहीं है, तो ये तो फोर्थ ऑप्शन होने का चांस नहीं है। वी नीड टू चेक द आंसर्स इन 1 2 एंड 3। सभी में फर्स्ट वाला तो आ गया, देन पोटेंशियल एनर्जी विल बी हाफ ऑफ दैट वन, यानी माइनस ऑफ योर total energy will be equal to your potential energy divided by 2। तो total energy की वैल्यू दे रखा है माइनस ऑफ 1.51, दैट इज इक्वल्स टू योर माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। ए माइनस चले गया तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू 1.51 इनटू योर 2। सो ये हो गया 2 1 2 2 5 10, यहाँ पर हो गया 1 2 1 2, तो ये हो गया 2 ये कितना बन जा रहा है बेटा, देख लीजिए यहाँ पर कुछ गलत किया क्या मैंने, हाँ कैलकुलेशन देख लो जरा आप लेके यहाँ पर इसका। So potential energy will be equal to 2 times of your 1.5। कितना आ रहा है देख लीजिए, total energy of an electron in an orbit of hydrogen atom is 1.51। its kinetic energy and potential energies are respectively how much। आ गया सभी को, कितना आ रहा है बेटा? अरे चैट बॉक्स में कोई तो भी आंसर दिया करो यार, पूरा मैं ही कराते रहूं क्या? छोटे क्वेश्चन से इसके तो भी आंसर टकाटक बोल दे सकते हैं आप लोग। चौदह बच्चे हैं, वेरी गुड। तो कितना आ जाएगा बेटा, मैग्नीट्यूड है ना बेटा उसका, इन टर्म्स ऑफ योर मैग्नीट्यूड है। तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी आ गई मेरे पास कितनी, ये वाला पोटेंशियल एनर्जी माइनस में आएगा, तो दिस विल बिकम फॉर मी माइनस, सॉरी, तो ठीक है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। चलो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 इज अगेन फ्रॉम योर ग्रेविटेशन चैप्टर। ऐसे वाले क्वेश्चन आपको कंपलसरी करने ही है बेसिकली। देख लीजिए क्या बोल रहा है, उसने बोला वर्क डन टू रेज द मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो मान के चलो ये सरफेस ऑफ द अर्थ है, यहाँ पर बॉडी है और ये इसका रेडियस यहाँ पर कहीं पर है। तो वर्क डन टू रेज द मास m, ये हो गया m टू द सरफेस ऑफ द अर्थ एट हाइट ऑफ h इक्वल टू 4 टाइम्स द रेडियस, है ना, बहुत ज्यादा हाइट को लेके जा रहे हैं हम लोग यहाँ पर। इट इज बीन राइज टू योर हाइट h इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ योर अर्थ, isn't it? So work done will be equal to your how much? तो पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालिए इसकी, when it is on the surface of the earth, initial potential energy will be minus of capital G capital M small m divided by your r. When it is taken to a certain height, potential energy का formula minus of capital G capital M into small m divided by from the center of the earth। अगर हम लोग ले रहे हैं तो total distance यहाँ से यहाँ तक बन जाएगी मेरे पास 5r, क्योंकि r plus h होता है ना बेटा। So r plus of your h हो गया, मतलब ये बन गया मेरे पास 5 times of your r। तो work done will be equal to your change in potential energy, that will be equal to your u final minus of your u initial। तो u फाइनल की वैल्यू तो मेरे पास माइनस ऑफ कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 5 into r है, माइनस दिस वन इज माइनस ऑफ योर कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय योर r। ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू योर कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r, तो कॉमन हो गया। और इसके अंदर देख लीजिए क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पर हो गया माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ योर 5 डिवाइडेड बाय योर 5, होता है ना, क्लियर है? एलसीएम आ गया ना, -1 + 5 डिवाइडेड बाय 5 into योर r। तो इसका वैल्यू आ रहा कितना देख लीजिए, -1 + 5 मतलब दिस विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय योर 5 टाइम्स ऑफ योर r। मैंने अभी आपको बताया था स्मॉल g की वैल्यू क्या लिख सकते हैं बेटा, स्मॉल g इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, स्मॉल g इज इक्वल्स टू योर कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय योर r स्क्वायर, यानी कैपिटल G कैपिटल M की वैल्यू कितनी हो जाएगी, g into r स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। सो दैट इज इक्वल्स टू 4, दिस कैपिटल G कैपिटल M की वैल्यू मैं कैसे लिख सकता हूं मैं, g into your r square into your m divided by 5 times of your r चलेगा यहाँ पर, so this will be equal to 4 mg into r divided by 5।
4 mg into r divided by 5, यानी सेकंड ऑप्शन में इसको बी द आंसर फॉर दिस वन. गुड क्वेश्चन. रेगुलर क्वेश्चन ऐसे वाले भी आते हैं डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए बेटा. क्वेश्चन नंबर 5 ये वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है बेटा. ये वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, कंपलसरी करना है, फॉर्मूले बेस्ड है. टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट emitting the waves of same intensity I naught produces the fringe pattern in the YDSC. At central maximum the resultant intensity will be equal to how much? You know that at central maximum the intensity is always 4 times of your I naught. Direct question without doing, you can directly write it out, क्योंकि इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम पर डेफिनेशन. मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिखोगे? IR is equals to your I1 plus of your I2 plus of your 2 times of your root I1 I2 into your cos phi. This will become maxima when the cos value will become for maxima. ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी. That will be equal to your I1 और I2 भी कितने हो मेरे पास यहाँ पर? I0 से हो गया I0 plus of your I0 plus 2 into this one is under root of your I0 square. Isn't it? So इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. That will give me the answer for me. कितना आ गया? I0 plus I0 ये स्क्वायर, ये चले गया 2 times, ये हो गया 2 times of I0 plus 2 times of your I0. So that will become for me 4 times of your I0. So that will be the direct answer. करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी अपने को. ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्वेश्चन है, कैपेसिटर का क्वेश्चन है, अपन नहीं कर रहे हैं. देन दिस वन इज योर इक्विलैटरल ट्रायंगल, मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का फॉर्मूला है. एंड ये हो गया ऑप्टिक्स का क्वेश्चन. An object is being placed on the principal axis of your convex lens at a distance of your 1.5. Isn't it? An object is being placed on the principal axis of your convex lens. Convex lens मतलब कैसा रहेगा बेटा? ऐसा रहेगा convex lens. और ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस. यहाँ पर कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ योर, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो दे रखा है u is equals to 1.5 times of your f. F is the focal length. The image will be formed at what distance? लेंस के लिए फॉर्मूला क्या है बेटा? 1 by f will be equal to your 1 by v minus 1 by u. लेंस फॉर्मूला. तो ये हो गया मेरे पास 1 by f is equals to your 1 by v minus 1 by u. u की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 1.5, यानी माइनस में माइनस ऑफ योर 1.5 टाइम्स ऑफ योर f के बराबर. ठीक है ना. So 1 by v बाहर निकालो इसमें से. 1 by v will be equal to your 1 by f minus 1.5 is nothing but 3 by 2, तो 2 ऊपर आ जाएगा. So it is 2 divided by 3 times of your f. इसका एलसीएम डाल लीजिए. एलसीएम will be equal to 3f. ये कितना बन जाएगा? 3 minus 2. 3 minus 2 is nothing but 1. 1 by your 3f. डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, यानी v value will be equal to your 3f. डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड. तो थर्ड ऑप्शन will be the answer for this. क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बेटा. क्वेश्चन नंबर 18 इज बीन कनेक्टेड टू योर साउंड चैप्टर. ये साउंड का क्वेश्चन है, साउंड का क्वेश्चन भी करना है. A tuning fork is being used to produce the resonance in a glass tube. The length of the air column in the tube can be adjusted by variable piston. At NTP, 2 successive resonances have been produced at 18 centimeter and 70 centimeter column of a length. If the frequency of the tuning fork is 300 hertz, the velocity of the sound at STP will be equal, NTP will be equal to how much? Velocity of the column by resonance method का फॉर्मूला अपने को मालूम है. V is equals to 2 times of your frequency into your difference in the length, that is L2 minus of your L1. तो V value will be equal to 2 into frequency दे रखा है प्रॉब्लम में 300 into your length will be equal to 70 यहाँ पर दे रखा है minus of your 18. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए सेंटीमीटर्स में, तो into 10 to the power of minus 2. You simplify it, will be getting the answer approximately. देख लीजिए कितना आ रहा आंसर. 17th वन का थर्ड ऑप्शन आ गया. 18th वन का कितना आ रहा देख लीजिए. कितना आ रहा बेटा? ये 2 zeros और ये चले गया, तो 3 से 6 हो गया. 6 into 70 minus of your 80, 312. Very good. So this will be equal to your 312 meter per second. That will be the answer. यानी कौन सा ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन. ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट वन इज दिस इज एमसीजी नहीं कर रहे, ये एसी का है, ये भी नहीं कर रहे. हाँ 25th वन इज अगेन न्यूक्लियर फिजिक्स. ये क्वेश्चन कंपलसरी करके आना है एग्जामिनेशन हॉल में. द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर इज 2 into 10 to the power of t, यानी t हाफ दे रखा है मेरे पास 2 into 10 to the power of 8 seconds. इफ द इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियर इन द रेडियो एक्टिव सैंपल इज, यानी इनिशियल नंबर मतलब n नॉट की वैल्यू दे रखा है 4 into 10 to the power of 24. द एक्टिविटी ऑफ द सैंपल एट व्हाट टाइम t is equals to t half will be equal to how much for the given condition. कोई बता सकता है बेटा इसका डायरेक्ट कनेक्शन? एक्टिविटी मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था फॉर्मूला आप लोग को. एक्टिविटी का फॉर्मूला होता है A is equals to lambda into your n, यानी that will be equal to your n की वैल्यू अपने को मालूम है.
एंड टी हाफ के भी फॉर्मूला अपने को मालूम है, टी हाफ इज इक्वल्स टू योर 0.693 डिवाइडेड बाय योर लैम्बडा। तो इसमें से लैम्बडा की वैल्यू निकालो, लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय योर टी हाफ। ये लेके जाके यहाँ पर डाल दीजिए 0.693 इंटू योर एन डिवाइडेड बाय योर टी हाफ। ठीक है ना। अब कितने टाइम पे पूछ रहा है वो, फिर t is equals to your t half के पास number of your this atoms will become how much for me, half ना बेटा, t is equals to your t half, n value will become for me n naught divided by 2, यानी इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा, n naught डिवाइडेड बाय 2, मतलब n naught की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4 into 10 to the power of 24 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन गया मेरे पास 2 into 10 to the power of 24। तो एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या बन गया, 0.693 into your 2 into 10 to the power of 24 divided by your t half। t half की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 into 10 to the power of your 8, isn't it? तो ये कितना चले जाएगा, देखो ये 2 चले गया, 10 to the power of 24 10 to the power of 8 में चले जाएगा, तो दिस विल बी 0.693 into 10 to the power of 16 disintegrations per second, या becquerel value, that will be one and the same। 0.693 I can take approximately 7 into 10 to the power of your 15 becquerels, यानी ये हो गया सेकंड ऑप्शन आंसर। ठीक है ना, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट वन 22 is related to your magnetic induced EMF, ये नहीं कर रहे अपन। Then question number 23 is again connected to your elastic potential energy stored, यानी elasticity क्या चैप्टर का क्वेश्चन है। This one is from your elasticity। elasticity surface tension फॉर्मूले बेस्ड चैप्टर्स होते हैं बेटा, कंपलसरी मिनिमम फॉर्मूले का नॉलेज अपने को रहना है, वरना डूइंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स विल बिकम मच डिफिकल्ट फॉर अस इन द एग्जामिनेशन हॉल। यहाँ पर पूछ रहा क्या दिख ली बेटा, ए ब्लॉक ऑफ मास m is suspended with a long wire of length l। तो ठीक है, यहाँ पर मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर हो गया ये वायर, इस वायर को यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है m, is been suspended by a long wire of length, इसका लेंथ हो गया l, of cross sectional area ये, the length of the wire is in equilibrium state becomes l plus x, यानी थोड़ा लेंथ इसका जो है ना बढ़ गया बिकॉज ऑफ दिस वेट। तो अब ये जो टोटल डिस्टेंस बन गया, दिस वन इज राइट नो l प्लस ऑफ x, यानी यहाँ से यहाँ तक इसका एक्सटेंशन हो गया x। The elastic potential energy stored per unit volume. Energy stored per unit volume is represented by U. U is equals to your half into stress into strain. I hope you remember the formula. So that is equals to your half stress मतलब कितना, force by area. Force is nothing but mg divided by your area into strain. Strain मतलब change in length divided by original length. तो ये बन गया मेरे पास mg into your x divided by 2a into your l. That will be the answer for the given question. तो कौन सा आ रहा है बेटा, mg into your l divided by 2, फोर्थ ऑप्शन will be the answer, डायरेक्ट क्वेश्चन। ओके, ये फिर मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है। देन दिस वन इज अगेन कोलिजन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए बेटा, अगेन ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है। ग्रेविटेशन का क्वेश्चन भी फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, तो कंपलसरी करके आना पड़ेगा। देख लीजिए, a body weighs 100 Newton on the surface of the earth, what will be its weight at a distance r/4 down the surface of the earth? You know that g at a certain depth का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, g at a certain depth will be equal to g into 1 minus d divided by your r, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। So that will be equal to your g into your 1 minus कितना डेप्थ पे जा रहा है बेटा, r/4, यानी ये हो गया r/4 into your r, ar gets cancelled, so it is 1 minus of 1/4 यानी 3/4, तो ये कितना बन जाएगा, so g at your depth will become for me your 3g divided by your 4, isn't it? अभी पूछा क्या बंदा प्रॉब्लम, what will be the weight, यानी w dash will be equal to your m into g at your depth. So that will be equal to how much for me, or m g at a depth will be equal to how much for me, 3g by your 4, यानी ये हो गया 3mg divided by 4। When it is on the surface of the earth, इसका weight कितना है 100 न्यूटन, यानी 3/4 into your 100। So 3/4 into your 100 मतलब कितना आ जाएगा बेटा, 75 न्यूटन। So 75 न्यूटन will be the answer। देखिए एग्जामिनेशन हॉल में वो 1 घंटे में करना इंपॉर्टेंट होता है अपने को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, isn't it? So don't run behind the topics which you have been not done, or at least वो टॉपिक पे कंपलसरी मत करिए क्वेश्चन जहां पर आप कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन मिनिममली आप लोग को मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चंस कंपलसरी करना है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस भी कंपलसरी करना है, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, ग्रेविटेशन, यूनिट्स एंड डायमेंशन, ऐसे वाले क्वेश्चंस तो किसी हाल में भी आप लोग को करके आना है।
ये भी देखिए बेटा ट्रांसफार्मर का है एसी, यानी ये नहीं करना बोल के नहीं बोल रहा, यू नीड टू डू दिस ऑल थिंग्स व्हेन यू कम बैक एंड यू हैव अ टाइम, यानी मिनिमम अगर आपका 80 से 100 का स्कोर हो गया, अगर आपके पास 10-15 मिनट बच जा रहे हैं बेसिकली, देन यू कैन कम आउट फॉर दिस क्वेश्चंस, और एक 5-6 क्वेश्चंस आप लोग करने की कोशिश कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 भी कर लेंगे। देखो, आइडियल डायटोमिक गैस इज हीटेड एट अ कांस्टेंट प्रेशर, the fraction of the energy supplied used in the work done by the gas will be equal to your how much। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फ्रैक्शन ऑफ योर एनर्जी सप्लाइड पूछा है, यानी W डिवाइडेड बाय योर Q, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। W is equal how much कितना बेटा, N R into your delta T divided by Q value will be equal to how much बेटा, N into your CP into your delta T, delta T, N और N gets cancel, so this value will become for me how much बेटा, R divided by your CP। Now CP कौन सा गैस है बेटा, डायटोमिक गैस है। फॉर डायटोमिक गैस CP की वैल्यू होती है 7R divided by 2, isn't it? So W by over Q की वैल्यू आ गई R divided by CP की वैल्यू कितनी है, 7R divided by 2, यानी ऊपर जाएगा, ये चले गया, that will become for me 2/7। So fourth option will be the answer, यानी 1 मिनट से कम टाइम में करने वाला क्वेश्चन है डायरेक्टली, अगर फॉर्मूला बेस्ड है अपने पास। तो नेक्स्ट वन इज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, वो बाद में कर लेंगे। टोटल काइनेटिक एनर्जी का है, ये तो नहीं होगा। देन दिस इज अगेन फ्रॉम योर मीटर एंड वोल्टमीटर, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 33 इज फ्रॉम योर एटम्स, दैट इज नथिंग बट ड्वेल नेचर ऑफ मैटर, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के टॉपिक में से। दिस वन इज फ्रॉम योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, Einstein's photoelectric effect। चलो, when a certain photosensitive surface is illuminated with monochromatic light of wavelength lambda, the stopping potential for this one is V naught. When the same surface is illuminated with a wavelength of 2 lambda, the stopping potential is V naught by 4. The threshold wavelength for the photoelectronic emission will be equal to how much? ये तो चिन्नो मिन्नो क्वेश्चन है, बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। वर्क फंक्शन आप लिख लीजिए इन टर्म्स ऑफ योर आइंस्टीन। आइंस्टीन का इक्वेशन क्या होता है बेटा, E is equals to your work function plus of your kinetic energy। kinetic energy maximum जब आएगी तो I can write in terms of your E into V naught। तो ये can be also written as of your work function plus of your E into V naught। तो work function बाहर निकाल लीजिए, E into V naught will be equal to, और ये बन गया in terms of your HC divided by lambda minus HC divided by lambda naught। एनर्जी को हम लोग HC by lambda ही लिख सकते हैं ना बेटा। So that is the first case right now. This is my case number 1। केस नंबर 2 में the wavelength is 2 lambda and stopping potential is V naught by 4, यानी ये हो गया E into V naught divided by 4 is equals to your HC divided by wavelength is 2 lambda minus HC divided by lambda naught। This is your equation number 2, ठीक है ना। Now substitute equation 1 in your equation number 2। So substitute 1 in your 2, तो कितना बन जाएगा बेटा, HC डिवाइडेड बाई लैम्बडा माइनस ऑफ योर HC डिवाइडेड बाई योर लैम्बडा नॉट इज इक्वल्स टू, अभी 10 मिनट ही बचे हैं मेरे पास, हम लोग 40 मिनट में ही कर रहे हैं। ये वाला जो हो जाएगा, सो यहाँ पर 2 1 तो ये कितना बन जाएगा देख लीजिए बेटा, ये यहाँ पर चलेगा तो दिस विल बिकम फॉर मी 2 टाइम्स, यानी 4 इधर जाएगा तो 2 टाइम्स ऑफ योर HC डिवाइडेड बाई योर लैम्बडा माइनस ये 4 फिर इधर जाएगा तो 4 इंटू योर HC डिवाइडेड बाई लैम्बडा नॉट। तो पूरे HC के टर्म्स को एक जगह लिख लीजिए बेटा, ये वाला एक जगह ले लीजिए, ये भी लैम्बडा है, लैम्बडा नॉट एक जगह ले लीजिए, तो ये बन गया 3 टाइम्स ऑफ योर HC डिवाइडेड बाय लैम्बडा नॉट इज इक्वल्स टू योर HC बाय योर लैम्बडा। HC और HC चले गया कैंसिल, अब मुझे चाहिए क्या, लैम्बडा नॉट। सो लैम्बडा नॉट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ लैम्बडा, यानी थर्ड ऑप्शन विल बी द आंसर फॉर दिस। 33rd का थर्ड ऑप्शन, वेरी गुड। द नेक्स्ट वन 34th वन देख लीजिए बेटा। RMS speed of the oxygen gas molecule at 27 degrees centigrade is its value at 327 degrees centigrade will be equal to how much? VRMS को फॉर्मूला क्या होता है बेटा, VRMS is equals to under root of your 3R into T divided by कैपिटल। तो अब दोनों के लिए लिखना है अपने पास, ऑक्सीजन गैस के लिए लिखना है RMS वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस है 27 डिग्री सेंटीग्रेड भी 327 के पास कितना हो जाएगा, यानी V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ योर T1 डिवाइडेड बाय योर T2, यानी दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ योर इसको 273 से ऐड कर दीजिए, इसको भी आप 273 से ऐड कर दीजिए, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा 300 डिवाइडेड बाय 600, ये चलेगा तो दिस विल बी इक्वल हाउ मच 3 1 जा 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 1 by √2, यानी V2 will be equal to your √2 times of your V। this will be the answer, यानी सेकंड ऑप्शन will be the answer for this one, ठीक है ना, वेरी गुड। ऐसा वाला पेपर आया ना तो एटलीस्ट वी कैन इजीली क्रॉस 100 120 तक तो हम लोग
विदाउट नेगेटिव करके आ सकते हैं आराम से। चलिए terminal velocity का क्वेश्चन देखिए बेटा, स्मॉल स्फीयर ऑफ diameter d falls from the rest in a viscous medium, which of the following relation between terminal velocity and diameter of the sphere is been clear? So viscous formula अपने को अगर याद है तो terminal velocity is directly proportional to square of the radius. अगर रेडियस है तो वी नो दैट डायमीटर इज इक्वल्स टू योर 2 times of your radius. Diameter is represented by your d, यानी r will become for me d by 2 का होल स्क्वायर. तो टर्मिनल वेलोसिटी इज नथिंग बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर. तो सेकंड ऑप्शन देखिए कितना इजी क्वेश्चन था. ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का है, वो कर लेते हैं बाद में. 37 दिख लीजिए, 37 करना चाहिए सभी लोग. यूनिट्स एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है, रेगुलरली अपने कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे वाले में. तो ये देख लीजिए एरर का क्वेश्चन है. इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज एरर अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ए बी एंड सी आर 2%, 1%, 3% रेस्पेक्टिवली. देन द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट विल बी इक्वल टू हाउ मच. इसका एरर लिखने का तरीका देख लीजिए, मैंने रिसेंटली पढ़ाया था क्लास में. डेल्टा एक्स बाई एक्स विल बी इक्वल टू, और ये का कितना हो गया पावर हाफ, तो हाफ ऑफ योर डेल्टा ए बाई योर ए प्लस ऑफ योर ये हो गया 3 times ऑफ योर डेल्टा बी बाई योर बी प्लस 2 times ऑफ योर डेल्टा सी बाई सी. यहाँ पर ऊपर जनरली बच्चे ऊपर गया तो नेगेटिव लेते हैं, लेकिन एरर में नहीं होता ऐसा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू लेना है तो माइनस ऑफ माइनस ये हो जाएगा मेरे पास प्लस. परसेंटेज में लेना है तो इंटू 100 करना है, तो ये हो गया मेरे पास हाफ इंटू यूर, इसको पूरे को 100 से मल्टीप्लाई करिए और इसको भी पूरा 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. परसेंटेज में एरर में आ जाएगा. ये हाफ डेल्टा ए बाई ये कितना दे रखा है प्रॉब्लम में बेटा, 2% दे रखा है, प्लस ये 3 इंटू ये दे रखा है 1% इन द प्रॉब्लम, प्लस 2 इंटू ये दे रखा है 3%. तो यहाँ पर से ये 2 चले गया. दिस वन इज 1%, 3 1 is 3 प्लस 3 2 6, 6 plus this one is 4, that will be equal to 10%. So 10% must be the answer. 37 का 4 option, very good. Then Boolean algebra है, next one अपन नहीं कर सकते अभी वो. Then 39 small hole is been present, ये अपन को viscosity उसका है, fluid dynamics का. Then this is your capacitor question. Then 41 is your friction question. 42 is again parallel plate capacitor. 43 is your again current electricity. 44 is your kinematics. 45 is right now for me particle moves 10 seconds. This is kinematics. Assuming that light, yeah, ये करना है formula based again. Assuming that light of wavelength 500 nanometer is coming from a star, the limit of resolution of the telescope will be equal to your how much? Limit of resolution मैंने क्लास में लिखाया था. बॉयज के पास फॉर्मूला होना चाहिए. टेलीस्कोप के लिए क्या फॉर्मूला था, याद है किसी को? रेजोल्यूशन का फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड होता है बेटा. रेजोल्यूशन विल बी इक्वल टू योर 1.22 into लैम्बडा डिवाइडेड बाय डी. याद आया, isn't it? So limit of resolution will be equal to 1.22 into wavelength दे रखा है कितना 500 नैनोमीटर, यानी 500 into 10 to the power of -9 divided by your d. d की वैल्यू हो गई 1. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, you'll get the answer. I'm leaving that one for you. आप लोग कर लीजिए. What happens to the number of your atomic number of an element when it emits beta plus? Again very important nuclear physics question है. Beta positive में right now it will become for me z minus 1, isn't it? तो मैं इसका इक्वेशन लिख रहा हूँ, देख लीजिए. बीटा प्लस रेडिएशन के लिए एक्स जेड, ये रिसेंटली कराया था मैंने फ्राइडे या सैटरडे के क्लास में. दिस विल गिव मी अ डॉटर न्यूक्लियस whose atomic number decreases by 1 and mass number will remain for me the same. प्लस उसके साथ एक एंटी न्यूट्रिनो आती है, दैट इज नथिंग बट बीटा प्लस 1 पार्ट ऑफ रिलेशन पॉजिट्रॉन के साथ. क्लियर है? तो मास नंबर, एटॉमिक नंबर विल बी डिक्रीजिंग, एटॉमिक नंबर विल बी डिक्रीजिंग होना चाहिए. तो मास नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय योर 1, यानी थर्ड ऑप्शन विल बी द आंसर फॉर दिस. चलिए, 3 planets P, Q, R have the surface temperatures Tp, Tq, Tr respectively. It was found that intensity of violet, orange and yellow color is maximum in the spectrum of P, Q and R respectively. Then it can be concluded. Again, this one is from your heat transfer question बेटा. कंपल्सरी करने वाला ही क्वेश्चन है. विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का अगर आप लोग को फॉर्मूला याद है टेम्परेचर का रिलेशन का, यू कैन डू इट आउट इजीली. लैम्बडा इनटू योर T is equals to your constant, isn't it? So wavelength of your वो दे रखा है मेरे पास, एक तो दे रखा है Q. wavelength of your right now for me what colors are there? Violet, orange है, तो wavelength of your orange ले लेते हैं. wavelength of your orange will be greater than wavelength of your yellow. wavelength of yellow will be greater than the wavelength of your violet. So obviously अगर wavelength connection है तो the inversely proportional हो गया. Then temperature of the violet will be greater than temperature of your yellow. Temperature of yellow will be greater than temperature of your orange. यानी I can say that temperature of the planet P will be greater than temperature of the planet R will be greater than of your TQ. यानी directly second option.
कितना सिंपल क्वेश्चन था, देख लीजिए। 49 इज अगेन फ्रॉम दी इलेक्ट्रिसिटी यानी मैग्नेट सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये एक बार आप लोग बाद में कर लेते हैं। देन 50th क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम यूर सेमीकंडक्टर्स एंड डिवाइसेस। तो ओवरली अपन कितने क्वेश्चन कर चुके हैं 40 मिनट्स के अंदर, ये अपने को इंपॉर्टेंट है। एक बार काउंट कर लेते हैं बेटा जल्दी से कि कितने मार्क्स अपन को आ रहे हैं। बाकी का 20 मिनट या 30 मिनट बचा रहता है और एक 10 क्वेश्चन आप लोग अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं। वी डिड क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ये भी करें ना अपन, ये भी करें 7, then we did your 8 9, there were 10 11 then 12 13 14 14 करे 15 16 करे 16, इसके बाद 17 we did the 17 करे, फिर उसके बाद यहाँ पर आए 17, ये हो गया 18, ये हो गया 19, ये हो गया 20। So we did 20 questions in 40 minutes. तो अभी आपके पास 20 मिनट्स रहता। किसी बच्चे ने बायोलॉजी अगर जल्दी कर दिया तो वहां से 10-15 मिनट बोरो अप कर लेगा, तो मान के चलो मैक्सिमम 30। तो और एक 30 मिनट से 30 मिनट्स में अब सेकेंड ईयर के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह के अगर आप 5 क्वेश्चन भी कर लिए, 5 into 4 दिस विल बिकम फॉर मी 20। यहाँ पर 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, 20 into 4 40, दिस विल बी इक्वल टू 80 मार्क्स आ गए कंपल्सरीली विदाउट नेगेटिव प्लस ऑफ ईयर 20, तो ये हो गया 100 मार्क्स, यानी मिनिमम मार्क बोल रहा हूँ। एक अच्छा वाला बच्चा जो है ना, ये 30 वाले क्वेश्चन में भी और ये 5 कर सकता है, 10 कर सकता है, 15 कर सकता है उसकी एबिलिटी के हिसाब से, लेकिन नेगेटिव बिना जाए टाइम कंज्यूम नहीं करे सर का, ये वाला करना जरूरी है अपने, ठीक है ना। स्मार्टली प्लान करना है कंपल्सरली। 40 मिनट में अपन 40 मिनट के अंदर अपन मैं पेपर डिस्कस कर लेते हुए आप लोग को 80 मार्क्स लाने का तरीका बता रहा हूँ। देखो मुझे पेपर करना नहीं है, अब 50 के 50 क्वेश्चन सीक्वेंस में करना नहीं है, आप लोगों को कराने का मेथड बता रहा हूँ कि 50 क्वेश्चन जब अपने पास मिलते हैं तो उसको पहले जो अपन पढ़े हुए हैं फॉर्मूले बेस्ड है वो वाले चैप्टर्स पहले पढ़ लेते हैं, पहले वो कर लें, 80 से 90 मार्क्स डाल ले, उसके बाद टाइम बचा तो ये 30 मिनट के अंदर आप, मैंने 5 ही क्वेश्चन बोला, जब 40 मिनट में आप 80-20 क्वेश्चन कर सकते हैं तो 30 मिनट के अंदर मैंने तो 5 ही बोला। कोई बच्चा अगर यहाँ पर 10 भी कर लिया ना तो 10 into 4 यहाँ पर 40 बन जाएंगे, तो स्कोर यहाँ पर जाएगा 80 प्लस ऑफ योर 40 यानी 120 मार्क्स भी चले जाने के चांसेस है। लेकिन पहली बार इसको आप 80 मार्क्स लाने की कोशिश कर लीजिए। यहाँ पर नेगेटिव नहीं हो रहे देन यू गो फॉर रिमेनिंग, अदरवाइज डोंट गो फॉर द नेगेटिव, बेटर गो फॉर अगेन बायो एंड केम, वहां पर आप कुछ करके आ सकते हैं इसके, ठीक है। There's a smart way to do the problem। मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर नहीं करा रहा पूरा, मैं आपको 1 घंटे के अंदर पेपर करने का तरीका सिखा रहा हूँ। आई होप एवरीवन गॉट इट। ओके, चलो टेक केयर बेटा, बाय, जज़ाकल्लाह।